So the non-metal properties is that one of the property of non-metal, they are brittle in nature. They are brittle in nature. Okay. So Saif Hussain, what is sonority? What is sonority? What is sonority of metal? I don't know. You don't know. Who will answer me? Amir Multani, what is sonority of metal? What is sonority of metal? Can you say? No, sir. Who will say? Mohammad Ursan, what is sonority? Sir, when the metal hits anything, it produces a sound like ton. Yes. So When a metal touches a hard surface, it produces sound. So it's called the sonority. Can you say some of the example of sonority? So metal. Bell, yes. When the two metals strike each other, they produce sound. It's called sonority. But last but not the least, what is lustre? What is Sir, lustre? Sir, metals have shine. Good. Okay, Amir Multani, say. Sir, metals that have shine, example silver, gold. Like, okay, that is called lustrity. Okay, let me share about the physical properties of non-metals. You need to note it down in your copies when we'll heard a new term. Okay. Yes, sir. Luster. All metals in the pure state have a shining surface. This property is called metallic luster. Non-metals, on the other hand, are dull. Therefore, they do not. So actually we are comparing between metals and non-metals. So the non-metals are dull, but not have luster. they are luster. Hardness. Try to cut iron with knife. Isn't सर आवाज नहीं आ रही. non-metals are soft. Malleability. Let's perform an activity. Take iron nail, coal piece of thick aluminum wire, pencil lid. Beat each of them with a hammer. What do you observe? Iron nail and aluminum wire change their shape, but coal piece and pencil lead break into pieces. Harder we beat, greater is the change of shape. Yes, Maruf, do you want to say anything? Do you want to say anything? No. Okay. Ala Khan? सर कॉपर मेटल नहीं होता है. कॉपर तो मेटल होता है. Thus, metals, if beaten, change their shape and forms thin sheet on beating. This property is called malleability. Non-metals break into pieces like we have seen in activity. Ductility. Another interesting property of metals is the ability to form thin wires.
It is called ductility. With this property, you can see wires of aluminium, copper, iron. Non-metals do not show this property and breaks if we try to form wires. Sonority. The property of producing ringing sound when a substance is struck by a hard substance सर Yes. is called सर डक्टिलिटी पे करना तो Ductility. यस सर उसका थोड़ा सा लिखना रह गया कॉपर के बाद का Okay, okay. if we try to form wires. ओके सर Sonority. The property of producing ringing sound when a substance is struck by a hard substance is called sonority. Metals are sonorous, but non-metals are not. Conduction of heat. If one end of iron rod is heated, then we can feel rise in temperature at other end also. जब हम वीडियो दिखा रहे हैं ना, तो आपको मोबाइल को घुमा लीजिए, ऑटो रोटेट स्पिन करके, जैसे नूर आलम खान कर रहे हैं, तो उसको ना ऐसे घुमा लेना है, ठीक है, तब उसको देखने में आसानी रहेगा आपको. This means that metals conduct heat. Non-metals does not conduct heat. If non-metals would have So metals conduct heat, but non-metals does not conduct heat. तो मैं अगले क्लास में आपका होम असाइनमेंट देने वाला हूँ कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो आप इसको एक बाय साइड में इसमें एक रो बनाना है जिसमें प्रॉपर्टीज लिखना है. ओके, एंड देन यू नीड टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. दिस विल बी अ होम असाइनमेंट आफ्टर टुडेज क्लास. यस सईफ से. सर मुझे लस्टर समझ में नहीं आया सही से. क्या समझ में नहीं आया? लस्टरिटी. लस्टर. यस सर. ओके, तो लस्टर क्या है? मैंने पिछले दिन बोला था व्हाट इज लस्टरिटी, जिसमें आपको एक साइन ही दिखाई देता है ना, जैसे एक सोना हो गया, सोना का चीज हो गया, है ना, जिसमें आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं लाइट को. मेटल इज ए लस्टर ऑफ ए शाइनी सरफेस, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट मेटल्स, क्योंकि दिस इज बिकॉज मेटल इज पॉलिश्ड. ओके, सो क्या करते हैं, ये साइन करते हैं और रिफ्लेक्ट लाइट. जैसे आप स्टील का स्पून ले लिए, तो यू कैन सी द स्पून कैन रिफ्लेक्ट लाइट. इसमें आप लाइट फेंकते हैं तो इसको ना आंख में लगेगा. जैसे हम लोग बच्चे जब से बचपन में हम लोग क्या करते थे, तो सन को उसमें रिफ्लेक्ट कराते थे और किसी का आंख में फेंकते थे. या मिरर, ऐसा ऐसा कुछ चीज है ना, तो जिसमें मेटल, जैसे मेटल का स्केल होता है, तो उसमें जो है ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो पॉलिश होता है. ये इसको, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं लस्टरिटी. ओके सर यस. नॉन मेटल के एग्जांपल क्या है? नॉन मेटल का बहुत सारे एग्जांपल है. सर ये कंडक्टर ऑफ हीट में, ये अभी जो यहाँ लिखा है. एक मिनट, जितने भी गैसेस हैं ऑल आर नॉन मेटल्स. जितने भी लिक्विड्स है ऑल आर नॉन मेटल्स, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, H2SO4, सब कुछ जो है, ये हर चीज जो है ये नॉन मेटल्स ही है. और नॉन मेटल्स ही ज्यादा है नेचर में, नॉन मेटल्स ही ज्यादा है, मेटल्स कम है. ठीक है, इसीलिए सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटल, चलिए इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. एक अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है, एक अर्थ मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है. इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इंशाल्लाह. यस सर. been conducting heat, will it be possible to use them as handles for cookers and pans? No. Conduction of electricity. Let's perform another activity. Connect circuit as shown. Check if the bulb lights or not. Repeat the same for other materials. Observation, material and conductivity. Iron nail is good conductor. Sulfur is bad conductor. Coal piece
is bad conductor. Copper wire is good conductor. From why this coal piece is activity, bad? you can verify that metals, Why coal piece is a bad conductor? Why sulfur is a bad conductor? Who will say? The sulfur and coal piece. Yes. Why they are bad conductors? And because they are non-metals. Yes, because they are non-metals. Thank you. are good conductor of electricity, but non-metals are bad conductor of electricity. Exceptions: sodium and potassium are soft and can be easily cleaved, that is, cut to form plain surface by knife. However, these belongs to metals. Similarly, all metals are solid except mercury, which exists in liquid. Very important point. This is very important point, as I have said in my last class also. The exceptions are most important for your exam, that in spite of being a metal, mercury is a liquid, which is not a property of metal. You should always remember this thing. Form. Iodine is a non-metal, but it is lustrous. Again, Diamond iodine, is iodine in spite of being non-metal, but it's lustrous. Okay. So we'll give a question like that. Write down name of a non-metal which is lustrous. The answer will be iodine. Okay. hardest substance, which is a non-metal. Again, can you see the What nature this of mean? the nature of the non-metal? The nature of the non-metal is what? Soft. But in spite of being a non-metal, diamond, okay, that is the hardest substance. Is that we cannot classify substance as metals or non-metals only on their physical properties. To classify, we have to study their chemical properties as well. Okay, so before going to the chemical property, this thing has to be cleared first. So what we have learned from this thing, so I will give an assignment to you to complete at your home. Write down the dissimilarity between the metals and non-metals. Okay, so today we have heard about the property. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. I can understand. Let me do it again. This way, sir. हेलो सर, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही. Yes, I'm trying on it. I'm working on it. Let
तक नहीं आया ना? No, sir. सर नेटवर्क इशू सर नेटवर्क इश्यू है। सर अभी भी नहीं आया। Let me introduce. I cannot share the board. but try करते हैं इसको. कुछ network issue. Let me reconnect it again last time. Okay, Google. So now you can see. So I'm just सर video off due to poor network. There is a bad weather in Kolkata. Now it is coming, right? Okay. So what you have learned actually? We have learned about the properties of non-metals today. Properties of non-metals. So what are the properties we have learned? Can you say what are the properties we have learned? yes sir. Sir, they are not luster and hard and malleable and ductile and sonorous, conduction of heat, conduction of electricity. I'm just writing the first point. They are not luster. Okay. They are, at first we can say they are soft in nature. Is it not? They are soft. And they are not luster. Okay. They are, so let us do in this way that really, understand a little bit of better. In this way, let me do that. सर नो डेंसिटी तो यहाँ पे ना हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को लिखते हैं. और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सेम करते हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को लिखते हैं. और दाहिना साइड में हम लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को लिखते हैं. तब एक में सारी चीज आ जाएगा, है ना? यस सर गुड. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को एक बार फिर हम लोग लिख लेते हैं. इसमें क्या है? हार्ड है, सॉरी हार्ड. सर मेलिएबल The ductility. चलिए एक एक करके लिखते हैं. पहले हार्ड है, Malleability. मेलिएबल लस्टरस है, लस्टरस. Yes, sir. उसके बाद malleability. उसके बाद जो है मेलिएबिलिटी है. इसके Sir, बाद ductility, Ductility. डक्टिलिटी sonority, सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट sir, sonority, Sonorous. एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा. सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी Sonorous. तो ये क्या है? सोनोरस है ना? Yes, sir.
नोपस। तो ये सोनोरिटी दिखाता है, और क्या है? Good conductor of heat. Sir, good conductor of heat. सो ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया है ना। Sir, good conductor of electricity. एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना। बात आ रही है समझ में? चलिए अब इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पहले है कि हार्ड के बदले सॉफ्ट होगा, है ना। अच्छा, ये क्या है? यूजुअली है सॉलिड्स, और ये है लिक्विड्स, गैसेस, Sir, diamond is non-metal. तीनों है। Not Soft. luster. Not ये luster. सॉफ्ट हो गया। इसके बाद हार्डनेस, मेटल को सॉफ्ट, लास्टरिटी, दे डू नॉट शो लास्टर, दे आर नॉन लास्टर्स, है ना। Sir, done. नॉन मेटल्स आर डल सरफेस। अच्छा, ये मैलिएबिलिटी, ये है, ये हो गया, और ये क्या हो गया? ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल इन नेचर। चलिए, सोनोरिटी, ये क्या है? नॉन सोनोरस है, नॉन सोनोरस, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, दे डू नॉट हैव थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल्स डू नॉट हैव थर्मल कंडक्टिविटी, राइट? दोस डोंट हैव थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम लोग लिखते हैं पोर कंडक्टर ऑफ हीट। Sir, पोर कंडक्टर, electrical conductor. हाँ, और ये है पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Exceptions are there. Exceptions. Which is the exception? That is graphite. Low melting point. Graphite is a exception. Graphite is a exception. Right? Yes, sir. Okay. So these are the things that we came to know about this. So can you say, okay, these are the things. So now, what you need to do at your home, I will give an assignment today, is that you need to bisect the copies in such a way and you need to write the differences between metals and non-metals. You need to write down the differences between metals and non-metals. Okay? Okay, sir. Yes, sir. So how can you write? The home assignment is write down the differences between Metals and non-metals. and non-metals. Yes, Amir Multani. Yes. Sir, I have a doubt. Yes. सर जैसे हम बोलते हैं यूजुअली मेटल्स आर हार्ड क्योंकि मर्क्यूरी हार्ड नहीं है, तो सर ऐसे नॉन मेटल्स में भी यूजुअली बोलना चाहिए क्योंकि डायमंड नॉन मेटल होते हुए लस्टरस हैगा और वुड भी सॉफ्ट नहीं स्ट्रॉन्ग हैगी। हाँ, वो तो है, सब में बोलना चाहिए ना। Yes. इसलिए एक टर्म हम इसको यूज करते हैं, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं जनरली बोलते हैं, क्योंकि सबका एक्सेप्शंस है। जैसे ग्राफाइट हो गया ना, ये इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए नॉन मेटल इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड आयोडीन इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए नॉन मेटल इज लास्टर, एंड मरकरी इन स्पाइट ऑफ बीइंग मेटल इज ए लिक्विड इन नेचर। तो आपको ऐसा लिखना है, डिफरेंसेस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? आपको डिफरेंसेस का पॉइंट लिखना है कि क्या इसका पॉइंट क्या है, ठीक है। या सब्जेक्ट इसको लिख दिया, सब्जेक्ट, व्हाट सब्जेक्ट, व्हाट इज द, मतलब क्या डिफरेंसेस लिखना चाहते हैं, 1 2 3 डाल देंगे। जैसे हो गया हार्डनेस,
जैसे हो गया डक्टिलिटी, जैसे हो गया सोनोरिटी, इस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, Yes, sir. असाइनमेंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, अंडरस्टूड। सर बोलो। सर सर जैसे कि सर metal- ये हम कॉपी जो बनाएंगे, हाँ, अभी अभी तो फिलहाल एक कॉपी बनाना है। जब आप लोग इसमें जाएंगे, हॉस्टल में जाएंगे, तो तो दो सर copy- उसमें तो हाँ, नहीं सर, उसमें फर्स्ट सर चैप्टर एक डाल के कॉपी में ही सब लिखेंगे ये। लिखना है। उसमें अभी आप लोग सर एक फर्स्ट चैप्टर इसको अभी आप लोग को एक कॉपी बनाना है, फिर आगे से हम लोग 2 कॉपी बनाएंगे। और जो पहला दिन का असाइनमेंट जो है उसमें लिख लेना है, और फिर आज दूसरा दिन का असाइनमेंट मैंने इसको ऐड कर दिया। चलिए मैं उसी में ऐड कर दूंगा, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोनों को एक साथ लिख के मैं एक नंबर दूंगा, उस नंबर में सेंड करना है। Yes, sir. Excuse me, sir. सर तो इसको फर्स्ट चैप्टर डाल के लिखेंगे ना? हाँ एकदम एकदम, मेटल्स और नॉन मेटल्स बोल के लिख लीजिएगा। हाँ एक्सक्यूज्ड, बोलिए। सर जैसे कि मेटल्स हार्ड होते, सॉलिड होते, तो नॉन मेटल्स लिक्विड होते, तो लिक्विड को अपन जमा के मेटल्स नहीं बना सकते सर? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट कीजिए। सर मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स लिक्विड होते, तो फिर सर अपन नॉन मेटल्स को जमा के हार्ड नहीं बना सकते सर? हाँ बना सकते हैं ना, जरूर बना सकते हैं। तो ये जो है ना, इसको टेम्परेचर हम लोग अगर निकाल लेंगे, जैसे कि आपका हो गया वाटर, तो वाटर में हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो क्या सॉलिड हो जाता है? वाटर थोड़ी मेटल है, वाटर तो नॉन मेटल है। यस सर। तो किसी भी एलिमेंट को हम अगर हीट एलिमिनेट करते हैं, हीट एलिमिनेट करने से क्या होता है, आप इसका क्या बना सकते हैं, इसको आप जो है सॉलिड बना सकते हैं, या लिक्विड दे सकते हैं, या गैस बना सकते हैं, जो भी है आप जो भी बनाना चाहते हैं इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 तरह का टेम्परेचर होता है, आप अपर क्लास में पढ़ेंगे इसको, टीसी, पीसी एंड वीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। आप कोई भी ऐसा मतलब एलिमेंट को, इफ यू कैन कन्वर्ट इट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, तो इसको ना हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग ड्राई आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको लिक्विड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। तो जैसे हम लोग अभी जिंदा है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो टेम्परेचर रखा है विदिन 50 डिग्री, अगर इधर का टेम्परेचर, आर्थ का टेम्परेचर अभी वॉल्केनो की तरह हो जाता, एक वॉल्केनो के अंदर जैसे होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होता, जैसे हिंदू लोग को श्मशान में जलाते हैं ना, तो ऐसा हो जाता ना, हम लोग एकदम जल जाते। सो कैन यू सी दैट इफ द टेम्परेचर अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ये तो गैस है, ये मेटल्स क्या होगा, सबको हम लोग पिघला सकते हैं। जैसे इफ यू सी द आयरन, सो इन टाटा स्टील फैक्ट्री, so if you give appropriate temperature, so you can also melt it, is it not? तो इसको लोहा को भी आप पिघला सकते हैं। तो इसी तरह से अगर टेम्परेचर देते हैं तो ये सारी चीज जो है ये ऐसे हो सकता है। दूसरा चीज है, उल्टा भी हो सकता है कि टेम्परेचर इतना घटा दिया कि आदमी जिंदा नहीं रह पाता है ना। तो दोनों तरह से चीज है, इस हिसाब से हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट? ओके सर। गुड क्वेश्चन, इनफैक्ट वेरी गुड क्वेश्चन। ये हायर ग्रेड्स में है, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 9 में फर्स्ट चैप्टर ही ऐसा है जिसका मतलब इसको फेस चेंज कहते हैं, फेस चेंज। एक फेस से दूसरा फेस में हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इसको हम लोग फेस चेंज कहते हैं। चलिए हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे के आज खत्म करते हैं क्योंकि वक्त हो गया। तो जो है एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके खत्म करते हैं आज का क्लास। सर रिएक्शन विद वाटर, किसका? मेटल्स का, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट मेटल्स क्या करते हैं, चलिए देख लेते हैं। मेटल प्लस वाटर, ये दोनों एक साथ हम लोग डालेंगे तो जनरली क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड।
मेटल हाइड्रोक्साइड होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, H2 गैस। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नहीं तो क्या होता है, मेटल के साथ हम लोग वाटर देते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स भी होते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस H2। चलिए एक एग्जांपल डालते हैं इसका, एक एग्जांपल 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2। देखिए ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। यस सर। बाकी हम लोग अगला दिन करेंगे इंशाल्लाह, वाटर के पास और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कराना है हमको, तो इंशाल्लाह कर लेंगे ये। ठीक है, ये भी हो सकता है कि मुझे वक्त मिला तो आई कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास ऑफ यू। सर सर यस, सर दुनिया की ठंडी सबसे ठंडी गैस को अगर अपन लावा के साथ मिला दे तो क्या होगा? क्या क्या? दुनिया की सबसे ठंडी गैस उसको अपन लावा के साथ मिला दे तो क्या होगा सर? तो ये डिपेंड करता है बेटा कि इसको गैसेस को जो ना, गैसेस का नेचर क्या है, ऊपर जाता है, तो आप इसको कैसे मिलाओगे इसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे मिलाएंगे इसको, उस हिसाब से इसका डिपेंड करता है। तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे बनाए हैं, जो ऐसे ऐसे खूबियां बनाए हैं, जो जैसे कुछ भी टेम्परेचर हो जाए तो ये गर्म नहीं होता है। खीरा खाए आप, खीरा, खीरा को आप कोई भी किसी में भी रख दो, गर्मी में भी खीरा खाता है आदमी। क्यों खाता है? क्योंकि इसमें नेचर है कूल रहना, महेंद्र सिंह धोनी के तरह कूल रहना, जितना भी गर्म हो जाए लेकिन हम कूल रहेंगे। हेलो सर। यस सर पॉलिथीन को अपन जलाते हैं तो सर वो खत्म क्यों नहीं होती? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसमें जो है ना अनसैचुरेटेड पॉलीमर्स हैं, इसको आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, इसको पॉलीथीन कहते हैं। बहुत सारा इथीन एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कैन प्रोड्यूस पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को हम लोग जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, पॉलीथीन जो है ना ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं क्योंकि विद इन 7 मिनट्स यू विल हैव अ नेक्स्ट क्लास। ओके सर हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की बुक हैगी सर, उसमें से पढ़ सकते हैं? हाँ उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सारी किताब जो है आपको एक नोटिस मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। आप जाएंगे या आपके पेरेंट्स जाएंगे और जो है इंदौर से जो है ये बुक्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है सर। कहाँ से? वो जो आलामीन मिशन एकेडमी इंदौर है ना, वहीं से। अच्छा सर। ठीक है इंशाल्लाह आज के लिए हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ठीक है सर, बाय सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह